age has brought in our life. So in this chapter, you are going to learn the ages of human history once again, and the useful of iron, and the changes of iron age and civilization of the iron age. So children, some material that the earliest human beings are used, we are going to talk about on stone, wood, bone, horn, copper, bronze and iron. Now children, the human history. So what is the human history? Some material that used by human beings are still useful for us today. Yes children, we all know that कि पहले जो मटेरियल ह्यूमन बींग्स ने यूज किया था, डिस्कवर किया था, वो आज भी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो हिस्टोरियंस डिवाइडेड दैट इनटू द एजेस. नाउ व्हाट इज दैट एज? दैट इज द स्टोन एज, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. Stone, wood, bone and horn, these are the materials used in the Stone Age. Earlier part, people learn to make proper pottery using clay, है ना. Hunting और gathering हुई. Farming develop हुई. This all we have studied in the Stone Age. Whereas in Copper and Bronze Age, all materials used earlier and also. Yes. Now आज भी हम ये यूज करते हैं. Various civilizations began to develop. They had good agriculture and earliest cities. Cities of civilization trade होते हैं and among themselves to get the goods that needed. Iron Age, वो the material used earlier and also. Yes, पहले भी iron use हुआ है children, and nowadays also we are using iron. So though the early history has been divided in this way, early history इस तरह से divide हुई, but one did not come to an end neatly before one started. Yes. So the Iron Age was the first time in early history where people began to use tools and weapons made up of iron. Iron Age एक ऐसा एज था जहां पर ह्यूमन हिस्ट्री में ये दिखाया गया है कि कैसे वेपन्स और टूल्स आयरन से बनाए गए हैं. सो दीज डिफरेंट एजेस डिड नॉट हैपन एट द सेम टाइम. एक चीज बता दूं आपको, हर चीज एक ही बार में हर चीज नहीं होने लगी है. इट विल टेक मेनी इयर्स. चेंजेस लाने के लिए हमें बहुत बहुत साल लगे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इन इजिप्ट पीपल वेर यूजिंग ब्रॉन्ज आर्टिकल्स. इजिप्ट में पीपल है ना ब्रॉन्ज आर्टिकल्स यूज कर रहे थे आज से 4,500 पहले, 4,500. देन वैसे उधर चाइना में 3,500 years ago यूज किया गया था. सिमिलरली आयरन एज हैज happened at the different times in different parts of the world. Historians think that the earliest and widespread use of iron about 3,200 years ago and around 12,000 BCE in West Asia. Historians का ये मानना है कि आयरन एज जो स्टार्ट हुआ है वो 3,200 years ago और 1200 BCE एशिया में स्टार्ट हुआ है. So for a long time only these people knew how to use iron. इन्हीं को पता था कि आयरन कैसे यूज करना है. ग्रेजुअली इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लगा, यानी वेस्ट एशिया से स्प्रेड होने लगा. गिवन इज द टाइमलाइन, यहाँ देयर इज अ टाइमलाइन दैट इज शोइंग यू हाउ द फार्मिंग हैज स्टार्टेड. अबाउट 11,000 to 12,000 years ago ह्यूमन बिगिन स्टार्टेड फार्मिंग. आज से 11,000 से 12,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग ने फार्मिंग स्टार्ट की. 10,000 years ago फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर का पहला यूज हुआ. Then about 4,500 to 3,500 years ago bronze का यूज हुआ first in Egypt and China में. And that about 3,200 years ago first widespread use of iron in West Asia. Then अभी in earlier you have studied about the BCE, that is birth of Christ, and CE till now, मतलब क्राइस्ट के बर्थडे से लेकर अब तक. Now let's see what is the useful of iron children. Iron was extremely useful metal for human beings. Human beings के लिए iron बहुत useful metal है. Now let's see the difference. Iron is much harder than other metal like copper और bronze से क्या होता है, iron बहुत hard होता है. ये मैंने आपको last lesson में भी बताया था. And it is used and it is better for making tools and weapons. Iron is found in many parts of the world, where as tins, which is used making
ब्रॉन्ज इज नॉट, वाइड स्पेड ज्यादा नहीं मिलते हैं. ऑल मेटल्स मेल्ट, they are heated to high temperature. Bronze metal at low, much lower than iron. Early people were able to metal bronze and pour it in the molds to make weapons or tools. पहले टाइम पे क्या करते थे, ब्रॉन्ज को पिघलाते थे और मोल्ड्स में डाल के उसी शेप के टूल्स बनाते थे. लेकिन ना, when they could not heat iron enough, it will take melt. आयरन को हम ज्यादा मतलब early people were not able to were able to melt bronze, but iron heat कर कर उसको इनफ उस पे क्या करना पड़ता था, मेल्ट करना पड़ता था. सो इट वॉज हीटेड एंड इट वॉज सॉफ्ट. जैसे आयरन को हीट किया तो वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता था. एंड इट वॉज वेरी इजिली टू मेक टूल्स. दिस प्रोसेस मेड देयर टूल्स एंड वेपन्स वेरी स्ट्रॉन्ग. है ना, हीटिंग करने से, मेल्टिंग करने से उनके टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनते थे. Several iron artifacts are their children that early human beings have been found. This shows that the people have learned to make useful objects, particularly tools and weapons. From these metals, some of the artifacts that have been are axes, plowshares, sickles, nails, swords, sparrows, arrowheads, and pots. ये सारे materials बनते थे. People use iron axes to clear forests so that they can land farming. Yes, iron. Now iron कैसे यूज होता था एग्रीकल्चर में? फार्मिंग के लिए प्लाव्स यूज होते थे, हल यूज करा जाता था. डीपर सॉइल करने के लिए, बेटर सॉइल करने के लिए प्लाव की बहुत अच्छा वो था. एंड सिकल्स, यू नो, दराती, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग, हार्वेस्टिंग दी क्रॉप्स. आयरन हेल्प करता था क्राफ्ट करने के लिए इन बिल्डिंग एंड क्राफ्ट. यस, आज भी हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो चिल्ड्रन पहले हम आयरन ही डालते हैं. आयरन के ही बेस के ऊपर हमारा सीमेंट एंड सब डलता है. एंड सम आर्टिफैक्ट हैव बीन फाउंड आयरन कुकिंग पॉट्स और नेल्स पे. इन लोगों ने देखा है कि नेल्स जो होते हैं वो भी आयरन के बने हुए होते थे. एंड कुकिंग पॉट्स, यस, आप घर पर देखते होंगे, आपकी मम्मा से बोलना तो वो जरूर दिखाएंगे आपको लोहे का बर्तन. नाउ ट्रेड. As tools improved, more food and other goods were produced than they're usually needed. This is called the surplus. Surplus यानी extra. जैसे जैसे टूल्स इंप्रूव हुए चिल्ड्रन, वैसे खाना बनाने का तरीका, हमारे रहने सहने का तरीका भी चेंज होने लगा. टाउन्स एंड विलेजेस सोल्ड देयर सरप्लस. जो उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल रहता था, टाउन्स एंड विलेजेस के लोग अपना बेचने लगे. एक ट्रेड स्टार्ट हो गया था. ट्रेड के बाद क्या होने लगा, जब ट्रेड बढ़ने लगा तो देन मनी का इन्वेंशन हुआ. पीपल ने क्या किया, दिस कॉइन्स ऑफ आयरन का यूज किया, आयरन के कॉइन्स का यूज किया मनी बनाने के लिए. देन लेटर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स भी बने. कॉइन्स वर आल्सो मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. एंड अब कॉइन्स जो है वो सिल्वर और गोल्ड से बनाने गए, आयरन के कॉइन्स भी बने गए. एंड उसके बाद सिल्वर और गोल्ड को मिलाकर भी कॉइन्स बनाए गए. सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स. नाउ with improve agriculture, everyone did not be a farmer. Yes, ये राइट है कि अगर हमें इम्प्रूव एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई फार्मर बन जाए. फ्यू पीपल कुड प्रोड्यूस द फूड दैट वाज नीडेड. सिर्फ थोड़े ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन सारी चीजें आती है. जैसे अर्बन एंड बड़ी सिटीज में फार्मिंग नहीं होती, वेयर एज इन विलेजेस यस, बिकॉज वहाँ के पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में निपुण हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे वर एबल टू डू दैट. सो इन्होंने क्या किया, देन इसी का ही ट्रेड स्टार्ट किया विलेज के लोगों ने. सो दिस इज हाउ द सिटीज एंड अर्बन सेंटर्स वर यूज्ड iron for building and art and craft and literature. Weapons. Now it's important, children. Yes, and iron was extremely used in making weapons. हथियार बनाने में भी बहुत यूजफुल हुए. आयरन वेपन्स हेल्प पीपल टू गेन मोर टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स एरिया. ज्यादा लोग क्या करने लगे, ये टूल्स से लड़ाई झगड़ा, वेपन्स होने लगे, वॉरफेयर होने लगे, तो लोगों ने क्या किया, टेरिटरी एरिया पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, जो आज भी चलता है. यस. नाउ सिविलाइजेशंस इन आयरन एज. व्हाट आर द सिविलाइजेशंस? Children, with the growth of cities and urban centers, civilization develops. Civilization means that a place is highly developed in area like art, trade, writing and architecture. Civilization क्या होता है children?
civilization is highly developed in areas like art, trade, writing and architecture. हर चीज का एक बदलाव आता गया, चेंज होता गया, डेवलप होते गए, चीजों को सिविलाइज्ड होते गए, चीजें बनती गई और आगे तक तरक्की होती गई हमारी और डेवलपमेंट होता रहा. सो दिस इज कॉल्ड द सिविलाइजेशन. All the civilization ancient world did not exist the same. Yes, earlier also I told कि पहले जैसा वर्ल्ड था आज वैसा नहीं मिलेगा. आज जैसा वर्ल्ड है आगे जाकर आपको वैसा नहीं मिलेगा. चेंजेस होते ही रहेंगे हमारे लाइफ में. सो टू सिविलाइजेशन ऑफ आयरन एज वर ग्रीक एंड द रोमन सिविलाइजेशन. बताया गया टू चेंजेस है चिल्ड्रन. एक ग्रीक रोमन सिविल ग्रीक है सिविलाइजेशन और एक रोमन सिविलाइजेशन. जैसे एंशियंट ग्रीक एट द टाइम ऑफ ग्रीन सिविलाइजेशन had many independent states spread over this map. यहाँ पर इस मैप में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सिविलाइजेशन आपको दिख रहा है. आज आपको ये मैप अलग तरीके का दिखेगा अगर आप अपना मैप देखोगे तो. सो सम सिटीज आर मैप mark in this map are Greece, Sparta, Athens, Marathon, Malt, Olympus, ट्रॉय, एशियन. बट आज इन सिटीज का नेम भी चेंज हो चुका है आज के अगर हम मैप देखेंगे तो. पहले से वैसे देन ये रोमन टाइम का था. The huge Roman in 117 CE. Rome was the chief city of empire. Find the yes, see here. This is what. No, this is the Mediterranean Sea. यहाँ पर देखिए इधर आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा एंड हियर यहाँ पर इज. सो दिस वाज द चेंज, दिस वाज द डेवलपमेंट टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस सिविलाइजेशन. सो द डिस्कवरी एंड द यूज ऑफ आयरन वाज एक्सट्रीमली डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. आयरन इज स्टिल एक्सटेंसिवली यूज टुडे. आज भी आयरन का यूज उसी तरह से किया जाता है. तो चिल्ड्रन, this was the lesson about the iron age. I am going to share the question answers in the group. Hope you all have understood very well. If you are having any doubts, uh, watch the video again and again to clear your doubts. So till then, I will be joined. I will be back with a new chapter. Okay. So all the best. Do learn, complete your work, or don't keep the work pending, all of you. And all of you be at home, be safe, keep on learning everything. Bye bye, take care.